Today we will see the types of computer software. Okay. The first thing, what is software? See, software means a set of instructions. Okay, a set of instructions given to the computer to solve a problem is called a software. Okay. Any set of instructions is a collection of instructions which is given to the computer, okay, to solve a problem is called software. So we can say software is a collection of programs that performs a particular task. Let's take any example, any software example, whether it is Microsoft Word, a PowerPoint, or any other software, WhatsApp. Okay, it is software only, na. So what is software? Is a collection of programs only. See how software is developed. Uh, to develop software, okay, various programming languages are used. Okay, various programs are used. That programs, what are programs? What are programs? Is a collection of, it is a set of instructions. Okay, so to develop a software, any software, we require a set of instructions. That set of instructions is called as programs. In terms of IT, that set of instructions is called as programs. Okay, the software is also called program. Different softwares are used to solve different problems, right? There are different types of software. Now let's see types of software. Okay, so there are three types of software on the basis of the functionality and use: system software, application software, and general purpose software. See, system software means it is a set of programs to control and manage the operations of a computer hardware. System software manage the operations of a computer hardware. Okay, computer hardware means hardware parts of computer like motherboard, RAM, hard disks, power supply. Okay, so system software क्या है? It is a set of programs to control and manage the operations of a computer hardware. Okay, it enables application programs to execute properly. See, with the help of system software only, a system software is installed in a system, so it enables applications programs to execute properly. So what is system software? Example of system software is operating system. Example of system software is operating system. Okay, operating system क्या है? Example है system software का. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज है, ठीक है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10. These are the examples of operating system. Okay, Windows 7, Windows 8, Windows 10. These are the examples of operating system. So operating system क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, so because with the help of system software only, कंप्यूटर कैन स्टार्टअप. ओके, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है. अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एग्जांपल्स ये विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा, then Apple, then Windows 7 or Linux. Maybe you have not heard this Linux, okay? Because basically, generally, what we are using in our home and in college, we are using Windows operating system. Okay, Linux क्या है? It is also an operating system only. Linux भी क्या है? Operating system का नाम. जैसे Windows सुने होंगे, Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, okay, एप्पल, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. वैसे लिनक्स भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है. ठीक है, इट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कंपनीज में ये सब मोस्टली यूज होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आईटी कंपनीज. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का. नाउ एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दिस ये क्या है? These are the different types of operating systems.
टाइप्स होंगे ना, जैसे लेट कंसिडर अनदर एग्जांपल, सी वेब ब्राउजर। अगर मैं वेब ब्राउजर बोल रही हूँ तो वेब ब्राउजर की डिफरेंट एग्जांपल क्या है, व्हाट इज वेब ब्राउजर? with the help of web browser only we can search on the internet, right? For the searching purpose, ठीक है, we are using the web browser। तो different types of web browser कौन से गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये सब क्या है, these are the different types of web browser, right? So like that only ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, अनेबल्स करता है सिस्टम को स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट एग्जांपल्स है, बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस, डॉस हो गया, ठीक है। डॉस फुल फॉर्म ऑफ डॉस इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यूनिक्स, विंडोज, लिनक्स, ओके। ये क्या, these are the examples of different types of operating system, okay। So what is DOS, okay? DOS क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट डॉस है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ओके, वी आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? इन आवर होम बेसिकली जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडोज 8 और वेदर इट इज विंडोज 10, ओके। तो विंडोज का हम लोग को पता है क्या होता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, इट प्रोवाइड्स, लेट मी राइट हियर, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी देखो, कुछ भी ऑपरेट करना है तुमको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ भी काम करना है तो क्या करते हैं हम लोग, एक इंटरफेस दिया होता है, स्क्रीन है हमारा मॉनिटर का, ठीक है, माउस के हेल्प से क्लिक क्लिक कर रहे हैं हम लोग, या बटन क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्लिक से काम हो रहा है, या कुछ टाइप करो उससे इंस्ट्रक्शंस पास हो रहा है, तो वो तुम्हारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तुम कुछ कमांड नहीं दे रहे हो। If you want to open D drive or E drive or any folder or any other application, तो ये क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दैट इज GUI। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI, ओके। तो वेयर एज सी, इसमें डॉस में, डॉस किस पे काम करता है, it provides CUI, command user interface, it provides command user interface। तो इसमें जो भी हमारा काम होता है वो कमांड के बेस पे देना पड़ता है मुझे, ठीक है, कुछ कमांड्स लिखने पड़ेंगे। डॉस के जो कमांड्स है, कुछ कमांड्स के थ्रू ही मैं इंस्ट्रक्शंस पास कर सकती हूँ, ठीक है। लाइक हम लोग कमांड देते, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी गेम हो गया, ठीक है, इसको स्टार्ट कमांड देना है, या स्टॉप कमांड देना है, या रेज्यूम कमांड देना है, कोई भी कमांड उसको देना है। तो सेम एज डॉक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोग अगर कुछ भी परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? कंप्यूटर, लैपटॉप में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये CUI बेस्ड है, मींस कमांड यूजर इंटरफेस है। इसमें मुझे कमांड देना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं ओपन कर रही CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है, फॉर एग्जांपल IP एड्रेस क्या है मेरे कंप्यूटर का। थोड़ा मैं हट के जा रही हूँ अभी, IP एड्रेस अगर मुझे चेक करना है तो ये कमांड है। क्या कमांड है, command you don't have to remember, na? For explaining only I am taking this example, IP config to check the IP address of computer, ठीक है। अगर मुझे IP एड्रेस चेक करना है कंप्यूटर, अच्छा, फर्स्ट थिंग व्हाट इज IP एड्रेस, ये यूनिक एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का, यूनिक, जैसे हमारा मोबाइल नंबर यूनिक होता है, आधार कार्ड नंबर यूनिक होता है, ठीक है। तो लाइक दैट कंप्यूटर का भी अपना यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो IP एड्रेस क्या है, यूनिक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। अगर मुझे चेक करना है मेरे सिस्टम का तो कौन सा कमांड है, IP कॉन्फिग लिखना होता है मुझे, और जस्ट एंटर इट। तो ये जो है ना IPv4 एड्रेस,
कैन यू सी दिस IPv4 एड्रेस लिखा है, फिर लिखा है 192.168.0.115, ये मेरा IP एड्रेस है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट करी, एक कमांड पास करी, कमांड मतलब एक उसको कमांड दी मैंने, इंस्ट्रक्शन दी। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, IP कॉन्फिग, उससे मुझे IP एड्रेस फाइंड आउट हो गया। तो ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इफ यू आर इंस्टॉलिंग दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, तो पूरे जो भी बेसिकली अगर तुम जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, ज्यादातर तुमको कमांड्स के थ्रू ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये CUI बेस्ड है, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, नाउ ये जो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल टास्क तुम एक साथ नहीं कर सकते। अभी देखो विंडोज में, विंडोज क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मींस अभी तुम मल्टीटास्क कर सकते हो कि नहीं, लाइक तुम्हारा यूट्यूब ओपन है, देन कुछ वीडियो प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में, देन एप्लीकेशंस ओपन है, बहुत सारे टैब्स ओपन है गूगल के। तो ये क्या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेयर डॉस इट इज सिंगल, मतलब यू कैन परफॉर्म सिंगल टास्क ओनली, ठीक है, एट ए टाइम इन डॉस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस इज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज क्या है तुम्हारा, मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट वन इज यूनिक्स। ओके, तो यूनिक्स तुम्हारा यूनिक्स इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ठीक है, और ये भी यूनिक्स भी तुम्हारा CUI बेस्ड है, इट इज CUI बेस्ड ओनली। ओके, तो कमांड यूजर इंटरफेस ही ये भी। विंडोज, अच्छा कैन यू आंसर दिस, विंडोज तुम्हारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? कैन एनीवन आंसर दिस, विंडोज क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को फिर अनम्यूट करूंगी, फिर बोल भी सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। यस राइट, विंडोज क्या है तुम्हारा, इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा विंडोज क्या है, हाँ ये तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, GUI बेस्ड है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कमांड यूजर इंटरफेस नहीं है। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नाउ सी लिनक्स क्या है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। हाँ, लिनक्स जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, डॉस, यूनिक्स, ये भी लिनक्स भी क्या है, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ठीक है, तो लिनक्स भी क्या है तुम्हारा, मल्टीटास्किंग है। क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मीनिंग समझ में आया, क्या है मल्टीटास्किंग? एट ए टाइम तुम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो लिनक्स क्या है, इट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इंटरफेस, GUI टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स GUI इंटरफेस। GUI इंटरफेस क्लियर टू ऑल? अभी इसमें से लिनक्स एंड विंडोज, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है GUI इंटरफेस के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा होता है, मीन्स इन कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इट अलाउज द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर, ओके, टू कम्युनिकेट बाय मूविंग अ पॉइंटर। ठीक है, माउस के थ्रू पॉइंटर मूव करो या क्लिकिंग अ बटन। ठीक है, ये सब करने से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कोई कमांड मुझे पास नहीं करना पड़ा, बाय सिंपली मूविंग द माउस एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस थ्रू कीबोर्ड एंड टाइपिंग एंड ऑल, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो कोई भी कमांड लिखने का नीड नहीं है।
लाइक आईपी कॉन्फिग तुम कंसीडर कर सकते, एक कमांड है ये, ठीक है, कोई एक कमांड है टू चेक द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें से लिनक्स एंड विंडोज क्या है, जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड यूनिक्स एंड डॉस क्या है ये, command user interface. Okay, so these are the examples of operating system. Operating system क्या, it is system software, application software और general purpose software. It is system software, it is system software. Okay, what is system software? What is system software? It comprises of those programs that control and support the computer system and its data processing applications. जो कंप्यूटर को सपोर्ट करता है, कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करता है, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो एग्जांपल हम लोगों ने क्या देखे इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Now we will see this one, application software. Okay, what is application software? See, application software means software developed by a user or software developed by a professional. Okay, वो टाइप के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कौन डेवलप करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अ यूजर और सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अ प्रोफेशनल। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, लाइक सैलरी सॉफ्टवेयर, कोचिंग क्लासेस सॉफ्टवेयर। कोचिंग क्लास सॉफ्टवेयर मींस डिफरेंट कोचिंग क्लासेस है ना, तो उनके अपने सॉफ्टवेयर होते होंगे। यहाँ पे ये तुम बहुत सारे कैन गिव मेनी एग्जांपल्स, यू कैन गिव अनलिमिटेड एग्जांपल दे सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अभी सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, जो सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, जो पहले से सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है, तुम अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, कोई जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक का अगर इंस्टॉल करें, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है, इट इज डेवलप्ड बाय अ प्रोफेशनल, राइट। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स सिर्फ एप्लीकेशन को ही ये हैंडल कर रहा है, खुद के एप्लीकेशन को, इस सिस्टम को नहीं हैंडल करता। अभी फॉर एग्जांपल अगर इफ व्हाट्सएप इज इंस्टॉल इन आवर सिस्टम, तो क्या व्हाट्सएप क्या कर रहा है, सिस्टम को हैंडल कर रहा है। इफ आई एम अनइंस्टॉलिंग व्हाट्सएप, ठीक है, फ्रॉम माय सिस्टम, तो क्या होगा, it will affect on my system, it will affect whether it will affect on my computer or laptop or anything or computer मोबाइल, नहीं करेगा। अगर तुम अनइंस्टॉल कर रहे हो तो सिस्टम पे अफेक्ट करेगा वो, तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाएगा, मोबाइल फोन बंद हो जाएगा सॉफ्टवेयर, अगर तुम अनइंस्टॉल कर रहे हो व्हाट्सएप, नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जो बस एप्लीकेशन खुद का, मतलब जो एप्लीकेशन है वो वर्क करेगा, ठीक है, उससे कोई सिस्टम से कोई इसका ये नहीं है। अंडरस्टूड? यू कैन गिव एनी एग्जांपल इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है। Now the next type of software is general purpose software. Okay. The software which are readily available in the market, that is called as general purpose software. Readily available, easily available जो है market में, that is called as general purpose software. Examples are word processor जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, स्प्रेडशीट, एक्सेल, इंटरनेट ब्राउजर, यहाँ पे दिया है ब्राउजर, ये किसका है, मोजिला फायरफॉक्स का है ना लोगो, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, ठीक है, ये वेब ब्राउजर है, इसको वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है जो रेडीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो ये तो इजीली अवेलेबल है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल और ब्राउजर, इट इज इजीली अवेलेबल।
So what we have covered till now? What is software? Software means कोई भी सॉफ्टवेयर होने दो, ठीक है, कोई भी, व्हाट्सएप, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तुम्हारा ब्राउजर, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन ऑफ क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है उसके अंदर, ठीक है। देन वो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। So there are three types of software on the basis of the functionality: system software, application software, and general purpose software. Okay, system software का example क्या है? Operating system, application software, like coaching classes software, okay, और your ये bank software, ठीक है, नेट बैंकिंग और एनी अदर सॉफ्टवेयर which is installed in your system, ठीक है, और इंस्टाग्राम, that is application software, ठीक है। General purpose software that is easily available in the market, like you can easily download it from the internet also, and it is easily available in the market, like web browser and this Microsoft Word, Excel. Okay, now we will see activities of an operating system. Okay, what is operating system? What is operating system? It is system software, right? It is system software which handles and controls the application software. अब see, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हैंडल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम स्टार्टअप होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम में। कि पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, इसके बाद आफ्टर इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हो तुम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तुमको इंस्टॉल करना है, यू कैन इंस्टॉल इट, ठीक है। एक्टिविटीज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम: परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेसेस, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, लॉजिकल एक्सेस, सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट। ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, दिस फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म। सो व्हाट इज परफॉर्म, मतलब ये क्या है, परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस। सी, अभी ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ रहे हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा, ठीक है। ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हाट वी आर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। अभी जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। डिफरेंट जूम जो इंस्टॉल है, जूम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या आर इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम माउस और कीबोर्ड, ओके, इट रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम डिस्क, देन इट डिस्प्ले आउटपुट और मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। तो अचीविंग ऑल दिस फंक्शंस, ये जो टाइप के फंक्शंस है, हार्ड डिस्क से डेटा रिट्राइव करना, इनपुट लेना फ्रॉम माउस और कीबोर्ड, ये क्या है, दिस ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो भी है फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शंस, ठीक है। हार्डवेयर फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। अभी जो भी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है, ठीक है, जो भी तुम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, जूम और एनी अदर एप्लीकेशन, वो क्यों ओपन हो रहा है, सो कंट्रोल कौन कर रहा है, इट इज कंट्रोल बाय दी
ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ठीक है। जो रैम स्टोर्ड है, रैम थ्रू रैम ओनली वी आर गेटिंग द स्पीड, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट आर स्टोर्ड ऑन रैम, ठीक है। तो वो कहाँ से मिल रहा है मुझे, कौन कंट्रोल कर, इट इज कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, सी हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंटरफेस, क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस, ठीक है। यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ओके। इंटरफेस मीन्स कोई भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे जब तुम चैट करते हो, ठीक है, वो क्या एक इंटरफेस है ना, थ्रू विच यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट। इंटरफेस मतलब कोई भी एक मीडियम, कोई भी एक वे जिसके थ्रू तुम कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, जैसे व्हाट्सएप में चैट कर रहे हो, तो वो स्क्रीन तुम्हारा इंटरफेस है थ्रू विच यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट। तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस because of which the programmer has to write same program irrespective of the configuration of the system। मीन्स कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कुछ भी होने दो सिस्टम का, समझ रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन समझ रहे हो। जैसे अभी मेरे कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे सिस्टम का, रैम है 4 GB, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का, ठीक है। रैम 4 GB है, प्रोसेसर इंटेल कोर 2 Duo है, हार्ड डिस्क समझो, हार्ड डिस्क भी मेरा समझो 500 MB, लेट अस कंसीडर एनीथिंग, ओके। तो ये सब क्या हो गया, मेरा कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। तो हार्डवेयर इंडिपेंडेंस मीन्स कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन होने दो सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है कि तुम कोई भी टाइप का, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होने दो, तुम क्या कर सकते हो, इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हो अपने सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, किसी पे डिपेंड नहीं है, समझ रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं है, इट इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। देख 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 जब देख ना मेरी कल भी करते रहो। Now task management, okay, see what is task management। टास्क मैनेजमेंट मीन्स जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑन आवर सिस्टम, so it controls by operating system only। See if you are opening more than one application at a time, that is multitasking, ठीक है, मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, if you are opening more than one application at a time, that is multitasking work we are doing, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल करना टास्क कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल कर रहा है ये सब, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स कितनी मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, हाउ मच मेमोरी इज अवेलेबल एंड हाउ टू कंट्रोल दैट मेमोरी, कैसे मेमोरी कंट्रोल करना है, लाइक रैम में एट ए टाइम कितने एप्लीकेशन स्टोर करना है, कितने इंस्ट्रक्शन स्टोर करना है, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसलिए देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुम्हारा करप्ट हो गया, मतलब तो पूरा तुम्हारा सिस्टम बंद हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आ गया तो तुम्हारा सिस्टम पूरा ऑफ हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हुआ, पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब वेरियस लॉट्स, मतलब वेरियस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, ठीक है। कौन से इंस्ट्रक्शन है, वो हार्डवेयर को कंट्रोल करना, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए हुए हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन डेवलप किया है, दिस प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ओके। नाउ यूजर इंटरफेसेस, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम को जो यूजर इंटरफेसेस है दो टाइप के हैं, ठीक है। तो वो दो टाइप कौन से, टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस आर प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से दो टाइप की यूजर इंटरफेस है,
Operating system provides two types of interface. What are they? CUI and CUI and command user interface and GUI. Okay, right. Very good. Command user interface and graphical user interface. Okay, command user interface and graphical user interface. Yes, right. Kajal, Pooja, then Sardar Falak, Anshu. Okay. Yes, right. CUI and GUI. Command user interface and a graphical user interface. Then next point is networking capability. See, अभी मैं कनेक्ट, सिंपल एग्जांपल लो, मैं कनेक्ट किससे हूँ? नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ मैं अभी, राइट? मैं नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ ना, इंटरनेट है मेरे सिस्टम में, जब भी मैं लेक्चर ले पा रही हूँ ऑनलाइन, राइट? तो वो क्यों हो रहा है? नेटवर्किंग कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को? द नेटवर्किंग कैपेबिलिटी कौन हैंडल कर रहा है? इट इज हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ठीक है? तो ओएस जो है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इट प्रोवाइड्स फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज सो दैट वी कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क. जो भी फीचर्स है और कैपेबिलिटीज है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, इट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. अभी देखो मैं यहाँ, ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग. तो ये नेटवर्क एंड इंटरनेट शेयरिंग ये सब कहाँ पे दिया हुआ है? साइन कहाँ पे हुआ है? जो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आईएसपी प्रोवाइड है, जो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो ये सब हैंडल कर रहा है. ये पेजेस उसने हैंडल किया, एडवांस नेटवर्क सेटिंग जो भी है, इट इज हैंडल बाय दी, मतलब फीचर्स जो भी है, कैपेबिलिटीज जो है हैंडल करने के लिए, नेटवर्क को हैंडल करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है, इट इज डिफाइंड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, स्टेटस दिखा रहा है नेटवर्क का. सी माय कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट कनेक्शन. कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इथरनेट पब्लिक नेटवर्क. ये मेरा केबल है, इथरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है? एक चैप्टर है तुम लोगों को नेटवर्क पे बेस्ड है, दैट टाइम आई विल शो यू दिस पेज. नाउ लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी. ओके, लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी मींस, सी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड सिक्योरिटी. ओके, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी मींस यूजर आईडी और पासवर्ड को ये ऑथेंटिकेट कर सकता है. मतलब तुम अपने पीसी में क्या कर सकते हो? पीसी को लॉक कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सो दैट ऑथेंटिकेट यूजर. ऑथेंटिकेट मीन जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है वही क्या कर सकता है? लॉग इन कर सकता है. ऑथेंटिकेट यूजर, ठीक है? मतलब जो जैसे ऑथेंटिकेट मीन जिसके पास राइट्स है यूज करने का सिस्टम, ठीक है, दैट इज ऑथेंटिकेट यूजर. So it provides security also. Then file management. Okay, फाइल मैनेजमेंट मींस ओएस जो है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है कहाँ पे पूरा फाइल स्टोर्ड है, ठीक है? हु कैन एक्सेस इट, कितने फाइल को एक्सेस किया गया, ये सब फाइल मैनेजमेंट है, ठीक है? कौन से फाइल्स ओपन हुए, फाइल्स का कैपेसिटी कितना है, स्टोरेज कितना है, ये सब कौन हैंडल कर रहा है? जैसे सी में दिखाता है, डी में दिखाता है कितना साइज रिमेनिंग है, वो कैसे हो रहा है? बिकॉज वो कहाँ पे डिफाइन है? ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन है, ठीक है?